Yes, so folding and faulting, we were discussing about this. Okay, and we have already discussed about the folding process. Yes, anybody would like to tell me what is the folding process? Raise your hand and answer me, because it's your time, you need to answer. Yes, anybody would like to answer? Yes, Alina, please unmute your mic. When two plates collide, folding process occurs. In this process, mountains are formed. Okay, so how these folding process occurred basically? When What these is the two plates collide, the pressure they exert, that is why the folding process occurs. okay? Okay, so how this structure of the folding structure is formed? This may I tell? Yeah, show. Structure of a fold, when the rocks bend upwards, they come upwards, so an anticline is formed. And when the rock layers bend downwards, a syncline is formed. Syncline is the downfold. And the sides of the fold are known as limbs. The size of the side of the fold, we call it as a limb. Great. Yes. Now I want answer from other people as well. What is the exile plane? Who gonna answer me? Okay, Ahmad, please answer. What is the exile plane? We have already discussed, right? Miss, an exile plane occurs in the fold when the what we say when the mountain folds, the exile plane occurs in the middle of it. Yes. Basically, exile plane divides that particular area into two halves, right? This is the reason हम उसको exile plane बोल रहे होते हैं. Yes. What are the limbs? Yes, I want answer from other people That is, except Alicia, Alina, and Ahmed. Muzammil Pari, you would like to answer? Yes. Muzammil, you would like to answer? Anybody would like to answer? Yes, Shamir. What are the limbs? Unmute your mic. Miss, Yes, miss, the Vijay. sides of the folds are known as limbs. So please, can you repeat? Anybody would like to answer? Yes, Fatma Aman. What are the limbs? The sides of the folds are called limbs. ठीक है, ठीक है, true. Basically, folding takes place on a large scale when two continental plates collide. ठीक है, sometime it happens जब oceanic और continental plates भी जब collide करती हैं, जब भी आपकी folding जो है वो basically this folding takes place or it occurred, especially when these two Indo-Australian plates collided with the origin plate. The oceanic sedimentary rocks on the edge of both plates were pushed together to form Himalayas mountain range. Basically, यहाँ पे आपको Himalayas mountain की example दी हुई है in your book, बट देर आर सो मैनी माउंटेन्स, द ओल्ड माउंटेन्स, ठीक है, जो कि इस तरीके से या फिर इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो फॉर्म होना शुरू हुई. हमने हिमालयस माउंटेन की एग्जांपल देखी थी, एंड दिस हिमालयस माउंटेन्स आर वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. ठीक है, बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जो कि आप ये सकते हो कि 3000 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है, 2000 ईयर्स ओल्ड हैं, और बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जो कि यंग हैं, लेकिन हिमालयस माउंटेन आर वेरी फेमस, ठीक है, आर वेरी रिनाउंड. दिस इज द रीजन इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है. राइट, देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लैंड फॉर्म्स. हमने लैंड फॉर्म्स भी डिस्कस किए थे. ठीक है, सो एनीबडी वुड लाइक टू शेयर अबाउट द लैंड फॉर्म्स? व्हाट आर दीज लैंड फॉर्म्स? Okay, now please tell me about the overthrust fold. Who gonna answer me? Yes. Sania Irfan, what is the overthrust fold? Unmute your mic and answer.
because I'm not reading the chat box. ठीक है, तो आप लोग मुझे उस पर आप लोग माइक Fatma Aman, if you want to give the answer, please unmute your mic. I'm not reading the chat box. Yes, Sani Arfan. What is the overthrust fold? We have discussed 5 types of fold, right? Anybody would like to share what are these basically? Yes, Zunaira Fahim. Yes, miss. Yes, beta, please tell me what are the 5 folding process or fold mountains. It's simple, it's given in your book. You can tell me the name. Miss Nadal. Zunaira. Then Ahmed. Miss, can I tell? It's very easy, Zunaira. Are you there? Okay, Sania. Do you know that the class participation is very important? Yes, Mohammad Mustafa, please answer. Symmetrical fold, Yes. asymmetrical fold, overfold, recumbent fold, overthrust fold. Okay, what happened in the recumbent fold? Who gonna answer me? What happened in the recumbent fold? Please answer. Yes. Okay. Yes. Yes, Alicia. Alicia. इस रिकम्बेंट प्रॉमिस पहले हमारा होता है ओवरफोल्ड मींस वन साइड छोड़ दी और दूसरे पे आहिस्ता आहिस्ता न्यूज कर ली होती है ओवर टाइम वो मींस बहुत ज़्यादा न्यू हो जाती है Alicia, I think your mic has an issue. ठीक है. I got it. I got your answer. Thank you. Yes, anybody would like to share? It's very easy. Miss Okay, what Nadal. happened? Yes, please, Ahmed. Miss, when there is an uneven compression, one limb falls over the other limb, and then it becomes an overfold, and after some time, it becomes a recumbent fold. Yes, because it's a over to over fold. When 2 or 3 layers, you can say it comes on one layer, ठीक है, so it becomes a recumbent fold. जब overfold to overfold होता चला जाता है, तो हम उसको recumbent fold बोल रहे होते हैं. Right? Okay. So finally, we have discussed over here about the folding process. What is the faulting process? Basically, the faulting takes place when rocks within the crust develop fracture or cracks, causing displacement of rocks to occur vertically, horizontally, or diagonally. Faulting occurs when crustal rock layers experience tensional forces, crustal rock layers experience compressional forces. Okay, Alina, I am on the same slide where I am reading right now, the faulting process. Everybody can see the slide? The faulting process slide on the screen? Or on the folding slide. Okay, now wait. Okay, I'm share it again with you people. Yes. So the faulting process, faulting takes place when rocks within the earth crust develop fractures or cracks, causing displacement of rock to occur vertically, horizontally, or diagonally. Faulting occurs when these two things happen basically. ठीक है, जब कोई भी टेंशनल फोर्स आपकी रॉक लेयर्स पर जाती है या कोई कंप्रेशनल फोर्स. टेंशनल फोर्स में क्या होता है? when two rocks or two plates basically pull apart.
ठीक है, जब टेंशन उनमें क्रिएट होती है और वो आप कह सकते हैं प्रेशर के साथ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं बेसिकली, ठीक है, तो वो टेंशनल फोर्स लग रही होती है। किसी भी तरीके से ये प्रोसेस हो सकता है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगनली, ठीक है, कोई एक प्लेट या कोई एक रॉक या कोई एक ब्लॉक जो है वो वर्टिकली मूव हो सकता है, हॉरिजॉन्टली मूव हो सकता है, ठीक है, डायगनली मूव हो सकता है। ओके, rock under tensional forces are pulled apart and stretched, usually resulting in a fault. Rocks under compressional forces are crushed together. Faulting कब होती है? ठीक है, जब या तो प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा होता है, ठीक है, टेंशनल फोर्सेस आ रही होती हैं, टेंशनल फोर्सेस जब लग रही होती हैं तो बेसिकली द पर्टिकुलर एरिया, द पर्टिकुलर ब्लॉक और अ रॉक, ठीक है, इट्स जस्ट पुल्ड अपार्ट, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ठीक है। वो दूर इस तरीके से होते हैं, जब उनमें प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई फ्रैक्चर लाइन जो है वो उनमें फॉर्म होती है, क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। दिस may cause them to either fault and fold depending whether they are brittle or a flexible under stress. Brittle का मतलब होता है basically that can be easily broken, ठीक है, कोई भी ऐसा रॉक जो कि आसानी से ब्रेक हो जाए, ठीक है, या तो वो फोल्डिंग फॉर्म कर लेता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर एज वेल। इस पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं उन फोर्सेस पे जो उस पर्टिकुलर रॉक पे अप्लाई हो रही होती है, ठीक है, या तो फॉल्ट हो जाता है, फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, क्रैक्स लाइन बनना शुरू हो जाती है, या वो फोल्ड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। समटाइम फोल्डिंग शुरू हो जाती है, आप देखते हो कि हमने देखा था अबाउट द कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट, ठीक है, because oceanic plate की density it's higher than the continental plate, so this is the reason वो continental plate की folding बनना शुरू हो गई थी, ठीक है। You can see the different fold mountains or are flexible under stress. This totally depend upon the pressure which basically is applied on these rocks. Different types of faults we have to study, right? Like a normal fault, reverse fault, and tear fault. What is the normal fault? A normal fault forms as a result of tension. The rocks layers in an earth crust are pulled apart and gravity causes one section to move downwards or upwards in relation to the other basically, ठीक है। ये vertically situation में जो है आप ये कह सकते हो इसकी movement हो जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल यू पीपल कैन सी दिस डायग्राम, ठीक है, आप ये डायग्राम देख सकते हो कि किस तरीके से नॉर्मल फॉल्ट में क्या हो रहा है कि एक ब्लॉक अगर एक पर्टिकुलर रॉक है, इसमें एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ द टेंशनल फोर्सेस, ठीक है, और आप देख रहे हो इन द नेक्स्ट डायग्राम कि एक ब्लॉक जो है वो अपवर्ड साइड पे या वर्टिकल साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेंशनल फोर्स। सो बेसिकली इसको हम नॉर्मल फॉल्ट बोल रहे होते हैं। इट्स बेसिकली ये सारी जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, लेकिन ये जियोलॉजिस्ट या फिर वो लोग जो इसको स्टडी करते हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेमैन या एक कॉमनर के लिए समझना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अगर आप इस चीज को स्टडी करेंगे, फर्दरली इसको स्टडी करेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर ये सिचुएशन किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है, ठीक है। क्या होता है, आप देखते हो कि एक माइनर अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है या कोई मेजर अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके रिजल्ट आपको पता चलते हैं जब ये पूरा इंसिडेंट हो चुका होता है, ठीक है, जब ये पूरा प्रोसेस हो चुका होता है बेसिकली, फिर आपको पता चल रहा होता है कि इसके एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्या। तो बेसिकली इट कम्स अंडर द नॉर्मल फॉल्ट। ओके, रिवर्स फॉल्ट, अ रिवर्स फॉल्ट डेवलप्स व्हेन there is a vertical displacement of rock as a result of crustal layers. It is similar to a normal fault, except that the block of rock layers that move upward relatives to the adjacent block now overhang it, forming an overhanging escarpment, ठीक है। Although ये movement reverse fault में जो है वो vertically होती है, ठीक है, वर्टिकली होती है, लेकिन ओवरहैंगिंग एस्कार्पमेंट, ओवरहैंग होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हो इन द नेक्स्ट डायग्राम द रिवर्स फॉल्ट बेसिकली, ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ओवरहैंगिंग एस्कार्पमेंट कि एक जो लेफ्ट साइड ब्लॉक है, ठीक है, लेफ्ट साइड ब्लॉक है, ये ओवरहैंग हो रहा है, ये जो राइट साइड ब्लॉक के ऊपर ओवरहैंग हो रहा है, चढ़ रहा है, इसके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स का मतलब होता है स्क्वीज करना, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल आप प्रेशराइज करके उन दो चीजों को स्क्वीज करना। जब ऑब्वियसली बात है जब वो प्रेशर बढ़ता है, बनता है, तो क्या होता है कोई एक पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो ओवरलैप करने लगता है,
नाउ पीपल कैन सी कि किस तरीके से इसकी फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई है, ठीक है। टिल्टेड फॉल्ट लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट हुई है। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से आप ओवरहैंगिंग एस्कार्पमेंट यू पीपल एक्सपीरियंस ओवर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशनल फोर्सेस। तो इसको हम रिवर्स फॉल्ट बोल रहे होते हैं। टियर फॉल्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द टियर फॉल्ट, जिसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी बोल रहे होते हैं। डेवलप्स व्हेन देयर इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक एज द क्रस्टल रॉक लेयर्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट कि किस तरीके से दो प्लेट्स जब आप ये कह सकते हो व्हेन दे इज मूव इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, जब वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती हैं तो हम उसको टियर फॉल्ट बोल रहे होते हैं। एंड दे जस्ट इजीली रब ईच अदर एंड दे जस्ट इजीली स्लाइड पास्ट ईच अदर। सो उनके बीच में उस प्रेशर की वजह से जो भी उसमें जियोलॉजिकल फोर्स लग रही होती है उसकी वजह से एक टियर फॉल्ट क्रिएट हो रहा होता है, राइट। Now people can see the diagram 2.7 figure, see tear fault. This is simple fault line आप देख सकते हो यहाँ पे create हुई है and easily these two blocks just moved and they just slide past each other. What are the rift valleys and block mountain and how do they form basically? Rift valleys and block mountains are landforms that caused by faulting on a large scale. ये जितने भी वैलीज आप बनते हुए देखते हैं या ब्लॉक माउंटेन्स बनते हुए देखते हैं, ये जब भी होते हैं जब किसी एक एरिया में पर्टिकुलर पॉइंट पे एक लार्ज स्केल पे ये फॉल्टिंग कॉज होती है, फॉल्टिंग बन रही होती है, ठीक है। A rift valley is an elongated lowland between two highlands. Rift valley क्या होता है? आप देखते हो कि दो जो है दोनों साइड्स पे आपके माउंटेन्स मौजूद होते हैं एक पर्टिकुलर सेंटर एरिया में या लो लैंड में। आप देख सकते हो कोई रिवर जा रहा है या कोई स्ट्रीम जा रही है तो हम उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। एंड बेसिकली आप ये कह सकते हो they all are formed naturally, ठीक है, because all these processes are natural. The highland that were created from the vertical displacement of rocks due to tensional or a compressional forces as a result of faulting. The reason is इसमें या तो टेंशनल फोर्स भी अप्लाई हो सकती है, कंप्रेशनल फोर्स भी अप्लाई हो सकती है, जिसकी वजह से ये रिफ्ट वैलीज बन रहे होते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल का मतलब है कि आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पाकिस्तान की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये जो हुंजा वैली है, ठीक है, और ये जो आपके दूसरे नीलम वैली है, इसी तरीके से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। और you people can see it's spread on a large area. All the valleys spread on a large area. A rift valley forms when the central block slides downward relative to the side blocks. एक बहुत बड़ा एरिया होता है, एक बहुत बड़ी रॉक होती है, ठीक है, एक बहुत बड़ा लैंड फॉर्म होता है बेसिकली, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो सेंटर पार्ट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशनल और टेंशनल फोर्सेस व्हेन दे अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो एक जो सेंटर का आपका ब्लॉक होता है या सेंटर एरिया होता है, इट जस्ट स्लाइड्स डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ जाता है, जो जिसको हम लो लैंड बोल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो आपके साइड एरियाज होते हैं, साइड माउंटेन्स होते हैं, जिनको हम हाईलैंड बोल रहे होते हैं, ठीक है, वो एज इट इज वैसे ही रहते हैं। और जो लो लैंड होता है उसमें या तो कोई ना कोई रिवर शामिल हो जाता है, कोई ना कोई स्ट्रीम बनना शुरू हो जाती है। ये सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं बेसिकली, ठीक है। Okay, now block mountain, conversely a rift valley can also form from a reverse fault caused by compressional forces. We have already discussed this thing. You can see in this diagram, आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर एक एरिया में जो है वो एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशन और टेंशनल फोर्स। यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में क्या कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है? Who gonna tell me? Is a compressional force or a tensional force? Yes, Alina. This tensional force. Yes, it's a tensional force. You people can identify with these arrows. ठीक है, ये जो आप एरोज देख रहे हैं आप इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज द टेंशनल फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ये ब्लॉक, इसमें फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई, फ्रैक्चर लाइन आई, क्रैक्स बनना शुरू हुए एंड जस्ट सडनली गोज डाउनवर्ड्स, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द रिफ्ट वैली। अभी जो रिफ्ट वैली जहां लिखा है इन द पार्ट ए डायग्राम, यहाँ पर कोई ना कोई या तो रिवर आ जाएगा, ठीक है, कोई स्ट्रीम लाइन शुरू हो जाएगी। Likewise, you people can see in the next diagram, B first diagram, people can see there is a compressional force is applying over here. This is the reason आप देख सकते हो इसका fault line का एरिया थोड़ा कम है, अपवर्ड एरिया कम है, और डाउनवर्ड जैसे जैसे ये एरिया नीचे जाता जा रहा है, it becomes wide, ठीक है, ये वाइड बन रहा है।
तो बेसिकली Miss? फॉल्ट लाइन, जी बेटा, Miss, in the second diagram, compressional force is occurring. where in the B diagram, yes, Yes. yes, you will can see the arrow, right? हमने एरो, अगर आप देखें इन द रिवर्स फॉल्ट तो कंप्रेशन क्या होता है, स्क्वीज करना हो रहा होता है, ठीक है? जब वो स्क्वीज कर रहा है वो पर्टिकुलर एरिया, तो इधर सडनली इज जस्ट गो डाउन, तो वो अपर एरिया जो है वो थोड़ा सा नैरो है, एंड व्हेन इट गोज डाउन सो इट बिकम्स वाइड, तो ये रिफ्ट वैली इस तरीके से क्रिएट हो रही है, एंड इट हैपेंस, ये सारे नेचुरल प्रोसेस हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हम बहुत सारे वैलीज देखते हैं, हम बहुत सारे रिवर्स देख रहे होते हैं, ठीक है? अगर मैंने आपको एग्जांपल, कॉमनली आई हैव गिवन यू द एग्जांपल अबाउट द हुंजा वैली एंड द नीलम वैली, ठीक है? सो इट बेसिकली दे ऑल आर फॉर्म्ड विद दीज नेचुरल प्रोसेस व्हिच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इन द क्लास, ठीक है? Block mountains is formed by a large scale displacement of rocks by either the tensional or compressional force. A block mountain with a flat top is called a Hearst. ठीक है? किस तरीके से ब्लॉक माउंटेन बन रहे होते हैं, इसका भी प्रोसेस यही है, लार्ज स्केल पर ही पूरा प्रोसेस फॉर्म्ड हो रहा होता है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? समटाइम ऐसा होता है कि जो आपके रॉक्स होते हैं उनकी मूवमेंट इस तरीके से होती है, वो पर्टिकुलर एरिया जो है, वो पर्टिकुलर ब्लॉक जहाँ पे फॉल्ट लाइन क्रिएट हो रही होती है, यू विल कैन सी इन दिस डायग्राम, ठीक है? यू विल कैन सी दिस इज द टेंशनल फोर्स अप्लाइंग ओवर हियर, ठीक है, इन 2.98 डायग्राम. So basically it's a block mountain or a Hearst. जब ये just because of this tensional force is applying over here, आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव कर जाएगा, जिसको हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं. ब्लॉक माउंटेन बोलते ही जब है जब एक माउंटेन जो है वो अपवर्ड साइड पे मूव कर जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस, ठीक है? You will can see in the second diagram of पार्ट ए, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लॉक माउंटेन्स बाय टेंशन, किस तरीके से ये ब्लॉक माउंटेन जो है वो अपवर्ड साइड पर निकल आया, but its area is very narrow. In the second diagram you will can see formation of a block mountain by compression, ठीक है? These fault lines have been created due to the compressional force. Now you will can see the overhanging escarpment occurred over here, ठीक है? वाइड एरिया आप देख सकते हो, ठीक है? इन पार्ट बी के वाइड एरिया जो है यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन से क्रिएट हो गया, और इसको हम ओवरहैंगिंग एस्कार्पमेंट बोलते हैं. ओवरहैंगिंग का मैंने आपको बताया था कि जब वो पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो एक ब्लॉक के ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो पूरा ओवरलैप नहीं कर पाता, उसको हम ओवरहैंगिंग एस्कार्पमेंट बोल रहे होते हैं. यस, माय पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चन? यस अलीना. Miss, please explain 2.9b. Okay, Lina, now you people can see which force is applying over here. Compressional force. Compressional force, ठीक है? Compressional force apply हो रही है. You people can see this is the wide area on the upward side, ठीक है? जैसे जैसे जितना आप इस डाउनवर्ड्स जाते जाओगे, आप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट जाते जाओगे, वो एरिया जो है वो नैरो होता चला जाएगा, शॉर्ट होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा. अगर आप लास्ट डायग्राम में देखें, ठीक है, आप नीचे वाली डायग्राम में देखो इन पार्ट बी बेसिकली, तो जो ओवरहैंगिंग एस्कार्पमेंट में हमने क्या देखा था, स्पेशली इट हैपेंस इन द रिवर्स फॉल्ट, ठीक है? जब रिवर्स फॉल्ट हो रहा होता है, ठीक है, ये रिवर्स फॉल्ट अप्लाई हो रहा होता है, तो आप ओवरहैंगिंग एस्कार्पमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. एक ब्लॉक जो है वो ओवरहैंग हो जाता है दूसरे ब्लॉक पर, ठीक है? वो पूरा उसको हम फोल्ड नहीं बोलेंगे, इट जस्ट स्लाइटली मूव्स टूवर्ड्स दी डाउनवर्ड्स ब्लॉक, जिसकी वजह से वो आप कह सकते हो वो एक सहारा लेना शुरू कर देता है, या फिर वो टिकना शुरू कर देता है एक नॉर्मल ब्लॉक पे, और वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है? जिसको हम ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं या ओवरहैंगिंग एस्कार्पमेंट बोलते हैं. यस जी, एनी क्वेश्चन? Any questions so far? Everything is clear to all of you?